Hello guys, yes, today we will discuss chromosomal theory of inheritance. That is a part of chapter 5, principles of inheritance and variation. Okay, till now we have discussed about the Mendel's law of inheritance. Okay, law of dominant, law of segregation, law of independent assortment we have discussed. Okay, now today we will discuss chromosomal theory of inheritance. This theory was discovered by Sutton and Boveri in 1902. Okay, this theory was discovered by Sutton and Boveri in 1902. 1902 के अंदर मतलब ये theory क्या हुई डिस्कवर हुई. उसके पहले क्या था? Mendel published his work in 1865. Mendel published his work in 1865, but till 19th century these remain unrecognized. Okay, due to many reasons. There are many reasons for this. First is communication was not easy. That time communication was not easy, so his work could not be widely publicized. Okay. Second, factors did not blend. He said that factors or genes did not blend with each other, was not accepted by his contemporaries. जिसके साथ काम कर रहे थे, इसके सहयोगी जो थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया. नेक्स्ट, use mathematics to explain biological phenomena. He used mathematics to explain biological phenomena that was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. Okay. Next is, could not provide any physical proof for the existence of factors. Mendel's work suggested that factors were discrete units, but he could not provide any physical proof for the existence of factors and what they were made of. Okay, so after that in 19th century there were three scientists, okay, that rediscovered the Mendel's work on the inheritance. These three scientists are De Vries, Correns and von Schermer. Okay, because that time advanced microscopy took place and scientists were able to observe carefully cell division. Okay, क्या वो 19th century तक मेंडल्स के वर्क को कोई पहचान नहीं, लेकिन आफ्टर दैट 19th century there are three scientists, De Vries, Correns and von Schermer. They rediscovered the Mendel's work on the inheritance. Because that time advanced microscopy took place and scientists were able to observe the carefully cell division. Okay, they observed that a structure is present in the nucleus that appear to double and divide just before each cell division. These were called chromosomes. That time, these three scientists observed that a structure is present in nucleus that is double and divide. Okay, that appear double or divide just before the cell division. Okay, मतलब सेल के डिवाइड होने से पहले इनको वो स्ट्रक्चर जो थी वो क्या दिखाई दी कि वो डबल है और वो डिवाइड हो जाती है. तो इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला? दिस इज अ क्रोमोसोम. सो आफ्टर दैट, to explain Mendel's law of inheritance, Sutton and Boveri used chromosomal movement. He observed that behavior of chromosome was parallel to the behavior of the genes. Okay, behavior of chromosome is parallel to the behavior of gene. So after that, they was given chromosomal theory of inheritance. According to this theory, Mendelian factors or genes are located on the chromosome, which shows segregation and independent assortment at the time of transmission from one generation to next generation.
ठीक है। सटन और बोवेरी ने क्या देखा कि जो मेंडल फैक्टर जिनको नाम दिया था, या जब बाद में जिसको हम क्या कह रहे हैं, जीन्स कह रहे हैं, दिस आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। और जैसे उसने कहा कि जीन्स फैक्टर्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और फिर इंडिपेंडेंटली वो क्या होते हैं, एसोर्ट होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उसी तरह इसने क्या कहा, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट होती है और ट्रांसमिशन के टाइम ये क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट एसोर्ट। Okay, they argued that the pairing and separation of a pair of chromosome would lead to segregation of a pair of factors or genes they carry. Okay, और क्या कह रहे हैं इन्होंने, क्या कहा कि जो क्रोमोसोम्स भी क्या पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ओके, उनका जो सेपरेशन है, क्रोमोसोम्स पेयर में वो पहले क्या गैमेट्स बनेंगे तो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, फिर उनके वापस से जो पेयरिंग है वो क्या है, जिस तरह से जीन्स या फैक्टर्स का सेग्रीगेशन होता है उससे क्या है, वो सिमिलर है। ओके, सो आफ्टर दैट दे यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल देम एज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोम्स का मतलब जो सेग्रीगेशन है, उन्होंने वो मेंडेलियन प्रिंसिपल से उनको क्या किया, यूनाइट किया, मिलाया और देखा कि वो क्या है, सेम है। देन आफ्टर दैट दे कॉल देम द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, नाउ वी डिस्कस द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्रोमोसोम्स और जीन्स एग्जिस्ट इन पेयर। ओके, जैसे फैक्टर्स उसने मतलब बताया था मेंडल ने, ये जीन्स जो उसने कहा था कि पेयर्स के अंदर होते हैं, एक कैरेक्टर के क्या होते हैं, 2 जीन्स होते हैं, एक टॉल के लिए जैसे और एक ड्वार्फ के लिए उसने बताया। तो उसी तरह क्रोमोसोम्स भी क्या है, पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ मियोसिस एंड जीन ऑल्सो सेपरेट दैट आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब एक पर्टिकुलर ट्रेट के जो जीन्स हैं वो क्या है, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब ये जीन्स क्या हो रही है, या जो मतलब अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, सिमिलर क्रोमोसोम दैट हैव सेम जीन। जैसे हमने बात की कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये मिलकर क्या कर रहे हैं, F1 जनरेशन में हमें ये भी क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। देखो इसमें जीन तो क्या है, सेम है। अब ये अगर हम देखें, ये 2 क्रोमोसोम है तो ये जीन क्या है, सेम है। किसका जीन है, टॉल का। ओके, लेकिन एलील्स वाज नॉट सेम, एलील तो सेम नहीं है। मतलब एक कैरेक्टर के लिए हमने कहा था उसके 2 जीन्स होते हैं, टॉल और ड्वार्फ, फिर हर एक जीन के ऊपर क्या है, 2 एलील्स होते हैं। ओके, वो पेयर में होते हैं और उनके ऊपर 2 एलील्स होते हैं। अब ये 2 एलील्स हैं, अब ये क्रोमोसोम तो कैसे है, होमोलोगस है, जीन भी इनके ऊपर क्या है, दे हैव सेम जीन बट वाज नॉट सेम एलील। बट एलील क्या है, सेम नहीं है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अब ये जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स से एक ही जाएगा, गैमेट के अंदर क्या होगा, ओनली 1 क्रोमोसोम जाएगा। ओके, गैमेट कंटेन ओनली 1 क्रोमोसोम। ओके, आफ्टर दैट उनकी पेयरिंग होगी, मतलब यानी यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट। अब ये क्रोमोसोम क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रही है। पहले इस तरह से दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे, स्मॉल टी। इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल टी गैमेट्स बन जाएंगे। ओके, फिर एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम तो वो क्या हो गया, सेपरेट हुए, और बाद में वो क्या, उनकी जो पेयरिंग है, एसॉर्ट का मीन्स क्या है, ग्रुपिंग पेयरिंग, वो क्या है, इंडिपेंडेंटली पेयर बना लेते हैं। ओके, तो इस तरह से मतलब ये क्या था, जैसे जीन्स और फैक्टर्स मतलब सेग्रीगेट हो रहे थे, इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट हो रहे थे, उसी तरह क्रोमोसोम्स भी क्या हो रहे थे, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेट, सेपरेट एंड आफ्टर दैट पेयरिंग इंडिपेंडेंटली, एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, तो ये तो थी क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दैट वाज डिस्कवर्ड बाय सटन एंड बोवेरी इन 1902। ये जो थ्योरी सटन एंड बोवेरी ने दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस,
that was experimentally verified. Okay, the experimental verification of chromosomal theory of inheritance is done by Thomas Hunt Morgan and his colleagues. Okay, ये जो मॉर्गन थे, अब इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, मतलब एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर और किए और उसको वेरीफाई करने के लिए उस थ्योरी को, ओके, टू डिस्कवर बेसिस फॉर वेरिएशन दैट प्रोड्यूस्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ही सॉ दैट कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर सम वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड. Okay, to discover the basis for variation, this done experimental verification of chromosomal theory of inheritance. Okay, Morgan worked with tiny fruit fly. For this experimental verification, Morgan chose fruit fly. Okay, so Morgan worked with the fruit fly. The zoological name of fruit fly is Drosophila melancustre. अब इसको चूज करने के उसके क्या रीजंस थे, मतलब उसने इसी के ऊपर क्यों एक्सपेरिमेंट्स किए. मॉर्गन ने क्या किया, मतलब अब इस क्रोमोसोमल थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए इसके फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए. अब इसने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चूज किया. यस, बिकॉज दिस इज सुटेबल फॉर जेनेटिक स्टडीज. ओके, जेनेटिक स्टडीज के लिए सुटेबल थे क्योंकि इसके अंदर क्या थे, it possesses 4 pair of chromosome of different size, because it possesses only 4 pair of chromosome of different size, and these chromosome, the sex chromosome, it has sex chromosome that are similar to the humans. Okay, that are similar to that of humans. Okay, तो इसके लिए क्या था, suitable for genetic studies because it has only 4 pair of chromosome. Okay, that are different in size, and it has sex chromosome that are similar to that of humans. Second, easily available and can be grown on simple synthetic medium in the laboratory. Okay, इसको मतलब एक छोटी सी बॉटल, मतलब साइज बहुत छोटा था इसका, और छोटी सी बॉटल के अंदर ही इसको क्या किया जा सकता था, रिएक्ट किया जा सकता था. Life cycle is about 2 weeks. It complete their life cycle within 2 weeks. ओके, जैसे पी प्लांट को तो क्या है, कुछ सीजन में ही हम ग्रो कर सकते हैं, उसकी मतलब पूरे साल में हमें कुछ प्रोजेनिस ही मिलेंगी. तो इसमें क्या था, मतलब 2 वीक्स में ही अपना मतलब कंप्लीट कर देते, तो उसको स्टडी करना क्या हो गया, इजी हो गया. बार बार जनरेशन टू जनरेशन उसकी स्टडी क्या होगी, इजी होगी. अ सिंगल मेटिंग could produce large number of progeny flies. ओके, एक सिंगल मेटिंग से क्या थे, लार्ज नंबर के अंदर प्रोजेनी फ्लाइज प्रोड्यूस हो जाते थे. मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द फीमेल फ्लाई. ओके, दोनों क्या थे, दोनों में एक अच्छा डिफरेंस था बिकॉज द साइज ऑफ द फीमेल इज लार्जर देन द मेल फ्लाइज. It has many type of hereditary variation that can be seen with low power microscope. अब इस फ्लाइज के अंदर क्या थे, बहुत सारी वेरिएशंस भी देखने को मिली. ठीक है, जिसको हेरिडेटरी वेरिएशंस थी, जो मतलब पेरेंट्स से बच्चों में, जो जैसे हम पहले बात की कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स है प्रोजेनी के अंदर वो सेम आते हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या थे, कुछ वेरिएशंस भी आई, कुछ न्यू कॉम्बिनेशन. जैसे हमने मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर देखा था कि फिनोटाइप जो है वो 4 टाइप के फिनोटाइप बनते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स थे वो तो 2 टाइप के फिनोटाइप ही थे पेरेंट्स में, तो लेकिन जो उसकी F2 जनरेशन में मिल रहे थे वो 4 टाइप की प्रोजेनिस मिली. तो यानी इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशंस क्या बने, न्यू कॉम्बिनेशंस बने थे. तो वो क्या होगी, वेरिएशंस होगी, पेरेंट्स से क्या होगी, डिफरेंट होगी. ओके, सो दीज आर द रीजंस फॉर दैट मॉर्गन वर्क विथ टिनी फ्रूट फ्लाइज. ओके, I hope you understand this chromosomal theory of inheritance. Okay, or in our next video we will discuss about linkage and variation. मतलब अभी हमने वेरिएशंस के बारे में बात की कि उसने टिनी फ्लाइज के ऊपर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसे क्या है, कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिली और कुछ लिंकेज भी उसे मिली. अब ये लिंकेज और वेरिएशन क्या है, we will discuss in our next video. Okay, till that time keep revise this chapter, read from book. Thank you, have a nice day.